morning student. Today we start chapter number 4 determinant and part 4. In this part we solve two topic. First property of determinant and second elementary operation on determinant. First we know about the main important property of determinant. There are total 10 important property of determinant. In this part we solve some important property of determinant. First property number first. It means if we given that a determinant and we find the value of this determinant, we given that a determinant a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 and c3. This is a general determinant of order 3 into 3. Its numerical value is equal to its transpose. Equals to, it means equals to, we transpose the determinant, then we get a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 and c3. This is the main determinant and this is the transpose of determinant. It means when we change a determinant its row and column, means हम किसी determinant की रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो सेम न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को फाइंड होती है जो इस डिटरमिनेंट में मिलेगी. इस टाइप से हम कह सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने को ये बताती है कि अगर अपने को एक कोई मैट्रिक्स गिवन दैट है ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन दैट है which order is 3 into 3, then value of this determinant, value of this मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल होती है इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट. दिस इज द मेन पॉइंट. मींस फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बताती है कि किसी भी डिटरमिनेंट को अगर हम ट्रांसपोज करके उसकी वैल्यू जो फाइंड करते हैं वो की वो वैल्यू अपने को मेन डिटरमिनेंट में फाइंड होती है. इट मींस वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट. इट मींस हम किसी भी डिटरमिनेंट के रो को कॉलम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड कॉलम को रो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट. सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड ऑफ डिटरमिनेंट. प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी डिटरमिनेंट की रो को अगर उसी डिटरमिनेंट की अगर रो से इंटरचेंज किया जाता है या कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज किया जाता है तो डिटरमिनेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा बट साइन चेंज हो जाएगा. It means we given that a determinant of order 3 into 3. This is a determinant a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 and c3. This is the determinant of order 3 into 3. There are 3 rows. This is the first row, this is the second row and this is the third row. Similar, first column, second column and third column. There are 3 row and 3 column. Value of this determinant is equal to, when we interchange the row of determinant, means हम इस determinant की जब row को interchange करते हैं, this is r1 and this is r2. When we interchange to each other, then we write a2 b2 c2 a1 b1 c1 a3 b3 c3. We interchange the row, then we get a negative sign. means अपने को एक नेगेटिव साइन मिलता है और डिटरमिनेंट की जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी. द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज, ओनली चेंज इट्स साइन. इफ वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव देन वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज negative. When we interchange one time interchange the row, similarly interchange r2
to R3, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। जब हम R2 और R3 को वापस we interchange it again, then we get minus, this is the minus sign, and we write again a minus sign because we second time interchange the row and column, then we get this determinant, this row is not changed, we change only R2 and R3, it means we get A2 B2 C2 A3 B3 C3 A1 B1 C1। okay, negative and negative, positive, then we get positive, this two times we use, then value of this determinant is equal to value of this determinant, but value of this determinant is negative, means हम किसी determinant की रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। जब हम वन टाइम इंटरचेंज करते हैं देन वी यूज नेगेटिव साइन, सेकंड टाइम इंटरचेंज करते हैं देन वी नाउ पॉजिटिव, व्हेन अगेन इंटरचेंज देन वी गेट a negative sign again, we interchange this and this row, R1 is interchanged to R3, then we write it again negative sign, similar we interchange its row, जैसे हमने रो को इंटरचेंज किया वैसे वैसे हम कॉलम को भी इंटरचेंज करते हैं। इफ वी इंटरचेंज C1 एंड C3 C2, दिस इज द C1 एंड दिस इज द C2, अगर हम C1 और C2 को इंटरचेंज करेंगे देन वी गेट दिस डिटरमिनेंट विद नेगेटिव साइन, इट मींस वी राइट B1 B2 B3 एंड A1 A2 A3 and we get C1 C2 C3 and this is the negative sign, it means जब हम वन टाइम किसी भी डिटरमिनेंट की रो को या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ओनली साइन चेंज होता है, द न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेम बट नेगेटिव साइन। ओके, सिमिलर कॉलम को चेंज कर सकते हैं, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, इट मींस इफ वी गिवन दैट ए डिटरमिनेंट, अगर अपने को कोई भी एक डिटरमिनेंट गिवन दैट है, इफ वी गिवन दैट ए डिटरमिनेंट एंड इट्स एनी टू रो, एंड थर्ड प्रॉपर्टी शो if in any determinant the value of any row and columns element is zero, then the value of determinant is zero। इसका मतलब ये कि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी रो के और कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो then the value of determinant is zero। हम we given that determinant now 0 0 0 A2 B2 C2 A3 B3 and C3, this is a determinant of order 3 into 3, find its value, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, it means property third tell me about that the element of all element of any row and column is zero, then the value of determinant is also zero, it means the element of R1 means R1 के जितने भी एलिमेंट है वो जीरो है, then the value of determinant is zero। now we expand with R1 means हम इस डिटरमिनेंट को R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, then we get 0 into, we write its subdeterminant, this is added, R1 and C1 is added, then we write B2 B3 C2 C3 minus 0 into second, this column is added and this row is added, then we write A2 A3 C2 C3 plus 0 into, next we write its third element, it means we get this added its first row and third column, A2 A3 B2
and B3. When we multiple any number by 0, जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीपल करते हैं, then 0 into value of this determinant is B2 C3 minus C2 B3 minus 0 into value of this determinant A2 C3 minus C2 A3 plus 0 into value of this determinant A2 B3 minus B2 A3. Okay, when we multiple any number by 0, जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीपल करते हैं, then value of this 0 minus 0 and plus 0 equal to 0. This property is an important property. ये प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट अपने को शो करती है कि किसी भी डिटरमिनेंट के रो और कॉलम के एलिमेंट 0 हो, any row and any column, then the value of determinant is 0. Similarly, given that example, find the value of determinant V given an example. First we given a determinant 0 2 3 0 1 5 0 7 0. Find the value of this determinant without expanding. मीन्स एक्सपेंड नहीं करना है, बिना एक्सपेंड किए अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. देन वी यूज प्रॉपर्टी, वी यूज द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी. इट मीन्स इफ एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड एनी कॉलम इज 0, then the value of determinant is also 0. In this example, the value of C1 मीन्स C1 जो कॉलम है उसके जितने भी एलिमेंट है उन सब की वैल्यू क्या है, 0 है. तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी का जब हम यूज करेंगे तो थर्ड प्रॉपर्टी अपने को ये शो करती है कि किसी भी कॉलम यानी कि वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम एंड एनी रो is 0, then the value of determinant is also 0, then we now equals to 0. This is an important property. Okay, this is the third property. Next we write its fourth property. Property number fourth of determinant. It means first we know about some elementary operation. First हम some elementary operations के बारे में पढ़ते हैं. Elementary operation it means we given any determinant. जब अपने को any determinant given दैट हो तो हम उसके रो और कॉलम में कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं. इट मीन्स हम उसके रो को या कॉलम को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीपल कर सकते हैं और किसी भी कांस्टेंट नंबर से उसको डिवाइड कर सकते हैं. बट द नंबर इज नॉट इक्वल टू 0. मीन्स नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए. किसी भी नंबर से आप मल्टीपल कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, रो को ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. ये जो ऑपरेशन होती है ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है. सपोज R1 इज चेंजिंग. इसका मतलब ये हुआ कि अपने को R1 में चेंज करना है. मीन्स जो डिटरमिनेंट गिवन है उसकी फर्स्ट रो में चेंज करना है. देन वी राइट R1 इज चेंजिंग R1 प्लस R2 प्लस R3. इसका मतलब ये हुआ कि अपने को केवल जो रो फर्स्ट है उसमें चेंज करना है और रो फर्स्ट में क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3. We added the element of first row, second row and third row. Means तीनों रो के एलिमेंट को अपने को ऐड करके लिखना है. But no changes in the second row and in the third row. Similarly, write R3. It means R3 में चेंज करना है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं. Means R1 माइनस का R2. Means R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करना है. इट मींस हम R3 में चेंजेस करेंगे तो R3 में चेंजेस के लिए कितना आएगा,
R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, बट नो चेंजेस द सेकंड रो। सिमिलरली राइट R2 मींस R2 में चेंज करना है, देन वी राइट 4R2 माइनस R1। ये R2 में चेंजेस होगा, चेंजेस किसके अकॉर्डिंग होगा कि हम R2 के एलिमेंट को 4 से मल्टीपल करेंगे, यानी जो रो होगी R2 वो 4 से मल्टीपल होगी। जब हम डिटरमिनेंट की किसी रो को या कॉलम को मल्टीपल करते हैं तो उसके डिवाइड में डिवाइड भी करना पड़ेगा। जैसे सपोज गिवन डिटरमिनेंट इन R2 में चेंज किया, हमने चेंज किया 4k 4k एंड 4k, देन वी डिवाइड बाय 4, तो 4 से डिवाइड भी किया जाएगा। एंड सब्ट्रैक्ट R1, और R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। These are the some elementary operation of determinant on row। ये रो पे यूज की हुई एलिमेंट्री डिटरमिनेंट है। सिमिलरली राइट R1 is changes 3/2 R3, ये भी एक ऑपरेशन है। सिमिलरली राइट R3 is changes माइनस के 9/2 R1 R3, and in this R1 means R3 के एलिमेंट को माइनस 9/2 से मल्टीपल करना है, एंड इन दिस ऑपरेशन R1 के एलिमेंट को 3/2 से मल्टीपल करना है। मींस किसी भी एलिमेंट से आप एलिमेंट को अननोन या किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीपल कर सकते हो। मल्टीपल करोगे तो वो डिवाइड में भी आ जाएगा। सिमिलर द एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज इन द कॉलम, ऐसे की ऐसी ऑपरेशन कॉलम में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अपने को C1 में चेंजेस करना है, C1 इज चेंजेस या कन्वर्ट C2 C1 प्लस C2 माइनस C3, मींस C1 और C2 को ऐड करके उसमें से C3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये चेंजेस किस में होगा, फर्स्ट कॉलम में। सिमिलरली चेंजेस इन कॉलम C3, जब C3 में चेंजेस करना हो तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 3C3 माइनस का C2, मींस C3 के जो एलिमेंट है उनको 3 से मल्टीपल करना और उसमें से C2 को सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली राइट C2, इट मींस C2 सेकंड कॉलम में चेंजेस करना है, इट मींस वी राइट C2 माइनस का C1 प्लस का C3। These are the elementary operation on the column and these are the elementary operation of a row. Similar there are lot of operation, means हम किसी डिटरमिनेंट के रो से रो में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, कॉलम से कॉलम में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, बट रो एंड कॉलम आर नॉट मिक्स्ड। रो और कॉलम को मिक्स नहीं किया जा सकता। रो की ऑपरेशन रो में यूज करनी है, कॉलम की ऑपरेशन कॉलम में यूज करनी है। इस टाइप से ऑपरेशन यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट जो ऑपरेशन है वो हमने यूज की कि R1 इज चेंजेस R1 प्लस R2, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन। सेकंड टाइम अपने को सॉल्यूशन चाहिए तो सेकंड टाइम हम इसी में ऑपरेशन यूज कर सकते हैं कि C1 इज इंटरचेंजिंग C1 प्लस C2 या C1 माइनस C2। इस टाइप से ऑपरेशन हो सकती है। यहां कभी C2 नहीं आ सकता, मींस रो की ऑपरेशन रो में अप्लाई करनी है और कॉलम की ऑपरेशन कॉलम में अप्लाई करनी है। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मींस होता है कि सोल्व डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए उसकी रो या कॉलम के एलिमेंट को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, किसी नंबर से मल्टीपल करना और किसी नंबर से डिवाइड करना। These are the elementary operation. Similar, the meaning of this word R1 and R2. This is the symbol for interchanging. ये जो symbol है ये अपने को ये बताता है कि R1 को R2 से इंटरचेंज करना है, मींस R2 की जगह R1 पुट करना, R1 की जगह R2, then we get a negative sign. Similar, C1 is interchanging C3, C1 को C3 से इंटरचेंज करना है, then we get a negative sign. If in a same determinant, एक same determinant में हम फर्स्ट ये ऑपरेशन यूज करते हैं, सेकंड ये ऑपरेशन यूज करते हैं, then negative and negative, positive, the value of determinant is positive. In this type we use a lot of operation on determinant.
यानी हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए या डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए किसी भी टाइप की ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, बट मेन पॉइंट इज नॉट मल्टीपल एंड नॉट डिवाइड बाय जीरो। मतलब मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट है उसके एलिमेंट को जीरो से मल्टीपल नहीं कर सकते, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड कंडीशन, हम रो में कॉलम को मिक्स नहीं कर सकते, कॉलम को रो में मिक्स नहीं कर सकते। ऑपरेशन जो होगी वो रो टू रो में चलेगी, कॉलम टू कॉलम में चलेगी, बट दिस केसेस आर पॉसिबल। ये केस हम अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ऑपरेशन इन द रो, सेकंड ऑपरेशन इन द कॉलम, दिस इज पॉसिबल। फर्स्ट ऑपरेशन इज रो, सेकंड ऑपरेशन इज कॉलम। ओके, these are the elementary operation on determinant. When we solve the question, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो by using the elementary operation and property of determinant we solve the question. हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Its fourth property, property number fourth of a determinant. This is an important property. Property number 4 ये कहती है कि if any two row or two column, if any two row and two column of a determinant are equal, then the value of determinant is 0. It means किसी भी determinant की किसी two row के और two column के एलिमेंट सेम है, इक्वल है, then the value of determinant is 0. उस केस में determinant की वैल्यू 0 होगी। We given that determinant example, we given a determinant of order 3 into 3 a b c, x y z and a b c. This is a determinant. Find the value of determinant. Find the value of determinant without expanding, means expand नहीं करना है, बिना expand किए अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। Then we solve the determinant. This is the R1 element of first row and element of third row are same. Then we solve, we use elementary operation. First we use R1 is changing, means रो फर्स्ट में चेंज करना आपको, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, R1 is changing R1 minus R3, मीन्स R1 के एलिमेंट में से R3 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलर ये ऑपरेशन यूज करने के साथ हम ये भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं कि R3 is changing R3 minus R1. We use this operation और दिस ऑपरेशन, मीन्स या तो ये ऑपरेशन यूज कर लो या ये ऑपरेशन यूज कर लो। जब हम ये ऑपरेशन यूज करेंगे देन वी गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a minus a, ओनली R1 में चेंज करना है। a में से a को सब्ट्रैक्ट किया, देन वी राइट 0, b में से b को सब्ट्रैक्ट किया 0, c में से c को सब्ट्रैक्ट किया 0, and R2 और R3 are no changes. We change only R1, x y z a b c. Similar if we use this operation, अगर हम ये ऑपरेशन यूज करते हैं then we change in the R3. R3 के एलिमेंट को चेंज करना है, then the R1 is same a b c x y z and R3 is changing R3 minus R1. R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है, it means a minus a 0, b minus b 0, c minus c 0. Value of this determinant equals to 0 and value of this determinant is equals to 0. It means we use the property number third. थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी डिटरमिनेंट की रो या एलिमेंट के ऑल एलिमेंट 0 हो तो उस डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। Now we solve some question related to first property, second property, third and fourth property by using the elementary operation. We given a question का example number second. Find the value of determinant by using elementary operation. Means elementary operation and the property used
करते हुए अपने को डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। वी गिवन ए डिटरमिनेंट 1 1 1 बी ए बी सी एंड बी प्लस सी सी प्लस ए एंड ए प्लस बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। डोंट एक्सपेंडिंग मीन्स अपने को डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको एक्सपेंड नहीं करना है। अपने को माइंड में थोड़ा थिंकिंग करना है कि वैल्यू ऑफ द फर्स्ट कॉलम इज 1 1 1 इक्वल एंड वी सम यूज द ऑपरेशन ऑफ द डिटरमिनेंट। मीन्स डिटरमिनेंट में अपने को ऑपरेशन यूज करनी है। वी चेंज C3 में अपने को चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? चेंज किया जाएगा C3 इज चेंजिंग C1 प्लस C2 प्लस C3 मीन्स वी चेंजेस इन द थर्ड कॉलम, थर्ड रो कॉलम में चेंज करना है। एंड चेंज क्या होगा? C2 प्लस C3। देन राइट दिस इज द एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है। एंड वी राइट 1 1 1 no changes, second column is no changes, A B C। in the third column we add C2 plus C3, it means B plus C में A को ऐड करेंगे। then we write A plus B plus C, C plus A में B को ऐड करेंगे। then we write A plus B plus C and A plus B में C को ऐड किया। then we write A plus B plus C। okay, we get this determinant, right? next we take common A plus B plus C means किसी भी डिटरमिनेंट की रो और कॉलम में से कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा हो तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। A plus B plus C, A plus B plus C same, then we take common A plus B plus C from C3 means थर्ड कॉलम में से अपने को A plus B plus C को कॉमन लेना है। then we write A plus B plus C is common, one time ही कॉमन आएगा, don't 3 times and its cube not use, only A plus B plus C। and we write this determinant 1 1 1 A B C and this element is common, then we write 1 1 1। this is the simple determinant and we using the property number 4 use करना है। by property number 4th property, it means C1 and C3 are same, then we write C1 is changes C1 minus C3 means C1 में से C3 को subtract करना है। then we write A plus B plus C। okay, C1 minus C3 1 minus 1 0 0 0 A B C 1 1 1। the element of the first column, all element of the first column is 0, then value of this determinant is 0 and A plus B plus C into 0 equals to 0 means हम यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं और फोर्थ प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि अगर any two रो और कॉलम आर इक्वल then the value of 0, यहाँ पे डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं या इसका यूज ना करके हम सोल्व करना चाहे तो ये प्रॉपर्टी यूज करके सोल्व भी कर सकते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट के रो या एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट 0 हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ओके, नेक्स्ट वी सॉल्व एडिशनल क्वेश्चन एक्सरसाइज एग्जांपल ऑफ द चैप्टर। Find the value of determinant without expanding by using the operation, elementary operation and property. We given a question. First, find the value of determinant given a 1 1
1 BC AC and AB. Next A B plus C, B C plus A and C A plus B. Find the value of this determinant without expanding. बिना एक्सपेंड किए अपने को डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है. Then we write its solution. इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. फर्स्ट we write 1 1 1 BC AC and AB. We multiply them and remove the bracket. Means थर्ड कॉलम से ब्रैकेट को रिमूव करना है. Then we write AB plus AC, BC plus AB and AC plus BC. In this operation only we multiply and remove the bracket. Only in the bracket को remove किया है. Then next we use या apply the operation. अब अपने को operation apply करनी है. We check this is the third column and this is the second column. If we added C2 and C3, अगर हम C2 और C3 को added कर देते हैं, we use two type operation. First C3 is converting C3 plus C2. एक तो ये ऑपरेशन यूज कर सकते हैं कि C3 में कन्वर्ट करना है C3 plus C2, या ये ऑपरेशन भी हो सकती है कि C2 is converting C2 plus C3. Both are same. इस ऑपरेशन में तो क्या होगा, C2 में चेंजेस होगा, C2 के जो एलिमेंट है उसमें C3 के एलिमेंट ऐड हो जाएंगे. इस ऑपरेशन में क्या होगा, C3 में चेंजेस होगा, C3 के एलिमेंट में C2 के एलिमेंट ऐड हो जाएंगे. बोथ ऑपरेशन आर सेम बट वी यूज ओनली वन ऑपरेशन यूज करनी है. देन वी राइट दिस ऑपरेशन 1 1